Good morning, dear students. So, we are going to begin with the second chapter of English prose, that is how things work. Okay, so I hope you have understood the first chapter of this book. So, in this chapter, we'll discuss mainly about various concept of how the things are actually working out, the process. Okay, yeah. So, let us begin with activity one. Activity 1. New words. Before beginning this task, make sure that you understand the words and meaning in How Does It Do Part 1. Did you find any new words such as reflect or photons or angle that you need help with? If you know them, can you help other classmates understand? Use a dictionary or talk to classmates until everyone understands the new words. So, here while going through the chapter, if you find some difficult words, do underline it and try to find the meaning from the dictionary. And once you get the meaning, if you find that your friend is also having the same trouble, you can explain it to him. Okay, so that is a simple activity which is given. Okay, now let us see what activity 2 has. Activity 2. Okay, how does it do that? Part 1. Now, you all are familiar with these concepts mirror, then glasses. You all know this concept very well. Yes. Now, whenever you look into your mirror, whom do you see? We see ourselves. यस आपने कभी सोचा है कि मिरर ऐसा काम कैसे करता है मतलब तुम उसके सामने खड़े हो तुम्हें ही दिखा रहा है ऐसे कैसा पॉसिबल है ऐसे कैसा वो करता है या फिर कभी कभी तुमने देखा हो कि तुम मिरर में दिखते हो लेकिन तुम मिरर के अंदर नहीं हो है ना हम दूर खड़े लेकिन तुम मिरर में दिखते हो ऐसे कैसे मिरर के अंदर दिख रहे हो पर तुम तो अंदर नहीं हो हाउ डज इट हैपन एंड कभी कभी मिरर में चीज़ें बड़े दिखते हैं मतलब होते हैं छोटे एंड यू कैन सी इट इन अ बिगर साइज हाउ इज दैट पॉसिबल सो दीज ऑल आर सम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन आवर माइंड एंड यू ऑल्सो हैव ऑब्जर्व व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल के साइड में जो मिरर्स होते हैं उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर मतलब हमको पास में ज़्यादा दिखता है मिरर में एक्चुअल में वो थोड़ा सा दूर भी हो सकता है ठीक है सो ये सब फिनोमिनन कैसे पॉसिबल है वो तो एक रैंडम मिरर है तो मिरर से कैसे ऐसा कर सकते हैं एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि तो मिरर के अंदर नहीं हो पर मिरर में दिखते हो ठीक है देन ऑब्जेक्ट्स वाला वो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जूम आउट करके दिखाता है मिरर और कुछ एकदम कोलैप्स होके सो हाउ इज सच पॉसिबल ऐसा कैसा हो सकता है that is what activity 2 is putting a question for you think about it because you will be writing something based on that in the next activity. Activity 3. Okay, this article begins by asking some questions about how things work. It asks about mirrors, magnifying glasses, cameras, and microscopes because all of things depend on light. ठीक है तो अभी हमने जो प्रीवियस एक्टिविटी में देखा कि मिरर कैसा पॉसिबल है फिर मिरर को हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं जूम इन जूम आउट एक्सेट्रा के बारे में सब हमने डिस्कस किया ठीक है हाँ हमने मिरर के बारे में मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बारे में कैमरास के बारे में माइक्रोस्कोप के बारे में सब बात किया और ये सब किस पर डिपेंड करते हैं लाइट पे जितना प्रॉपर लाइट होगा उतना प्रॉपर वो एक्सपेरिमेंट या जो भी ऑब्जर्वेशन है कंडक्ट कर रहे हो वो एग्जैक्टली इट विल बी as it is okay yeah so now you have to write down a new article about electricity okay so for that you will be writing any 4 items which fully works on electricity मतलब वो पूरी तरीके से electricity पे ही dependent है for its work so I'll give you some suggestions my suggestions are microwave oven okay then refrigerator then television yes and the last is the washing machine okay so I have taken these 4 items which are regularly available at almost homes okay so you have to list down any 4 such things which is dependent on electricity
ओके या सो फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन पे कोई क्वेश्चन सोचो आप, फिर वो क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन आप सोचोगे रेफ्रिजरेटर पे, फिर उस पे से क्वेश्चन लिखो। देन टेलीविज़न पे सोचो, उस पे से क्वेश्चन। लास्ट में आएगा वॉशिंग मशीन, उस पे से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोवेव ओवन एंड अ नॉर्मल ओवन, you can put up a question like that. Yes. Second, how does cooling system work in refrigerator? आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर ठंडी होती है, हाँ गर्मी के समय में उसके अंदर ठंडी होता है, तो ऐसे कैसे होता है? और आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम फ्रिज का डोर बंद करते तो लाइट चला जाता है, why does it happen? You can put up that question also. Then what is the difference between LED and LCD TV? That also you can ask. Now it is more prominent. Yeah. And the last, how does a washing machine operate? Washing machine कैसे चलता है? ओके, सो इस पे आपको पहले तो क्वेश्चंस फ्रेम करना है ताकि आप उस कोई भी एक टॉपिक पे फिर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? या। Activity 4. How does it do that? Part 2. Now, the answers to all these questions are found in how light works. हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी के बेस जो भी आइटम्स है लिखा, ठीक है, फिर हमारे मन में जो क्वेश्चंस है वो हमने फ्रेम आउट किए। अब इस एक्टिविटी में हमको पता चलेगा कि ये सब फिनोमिनन क्यों होता है। सो वी नो दैट वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन देयर इज लाइट, राइट? हमारे सपोज व्हेन वी स्विच ऑफ द लाइट इन आवर रूम, वी कैन नॉट सी एनीथिंग. Yes, it's fully blank, darkness, but as soon as we switch on the light or a ray of light falls upon, we can see the things. So light is the phenomena which makes us see the things, everything. ठीक है, हम जो भी देखते हैं हमको क्यों दिखता है वो लाइट की वजह से. Some things like light bulbs, the bulbs at home, and fireflies, you have seen ना, moths हम बोलते हैं ना, fireflies, हाँ, उन लोगों के खुद के लाइट होते हैं, ठीक है, they don't take the light of others, they themselves glow. ये फायरफ्लाइज होते हैं, ऐसे ऐसे चमक चमक के उड़ते हैं तो लाइट दिखता है, हाँ, तो ये जो होते हैं वो फिर लाइट बल्ब्स होते हैं, उन लोग के खुद के लाइट्स होते हैं। बट कई चीज़ें हैं जिनके खुद के लाइट्स नहीं होते हैं। सो हाउ डू वी सी देम? वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। अभी बल्ब है, चलो उसका तो लाइट है तो इसके लिए हमको वो दिखता है, फायरफ्लाई है उसकी भी लाइट है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लाइट नहीं होता है, ठीक है, स्टिल हमको वो दिखता है। तो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका एक रिफ्लेक्ट इमेज हमारे रेटिना में प्रोड्यूस होता है और हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। इट्स अ साइंटिफिक फिनोमिना एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। यस, yeah. So how does this phenomena work? Let's see some aspect of the same. Light is energy made of many very tiny parts called photons. Light जो होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे parts होते हैं, particles होते हैं, जिसको हम photon कहते हैं। photon वो होता है जिसमें light energy और electromagnetic force होता है, जो electromagnetic energy होता है जो ऐसा move होते रहता है, ठीक है, and वो move होता है particles के वजह से वो lights produce करते हैं। तो ये photons जो होता है वो उसके कारण ही light produce होता है। The photon of the light hit things and bounces back just like a ball does. बॉल को तुम वॉल पे मारोगे तो बाउंस बैक होगा, हम उसको कैच करते। सेम वे जैसे तुमने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, नाउ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो एज सून एज योर आईज लुक एट दिस वीडियो, the photons pass through your eyes, it hits the object and it bounces back into your eyes. So you can see, okay, this is the video, this is the mobile, this is the laptop, this is the book, this is the person. Okay, understood? तो इस तरीके से वो फिनोमिना वर्क करता है। If the thing they hit is hard and smooth like a mirror, almost all of the light photons bounce back. अगर जो रिफ्लेक्ट तुम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एकदम हार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे स्मूथ नहीं, एकदम हार्ड है, रफ है, सॉरी नॉट रफ, एकदम मतलब हार्ड कोर ऑब्जेक्ट, एकदम प्रॉपरली साइज्ड, तो तुम उसको देखते हो तो उसका पूरा तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्शन आ जाता है। तुमने जैसे मोबाइल को देखा, मोबाइल के ऑल द फोर कॉर्नर्स एंड ऑल द मीन्स दैट क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर वो तुम्हारे आँख में रिफ्लेक्ट बैक पूरा हो जाता है। तो जब
अगर किसी हार्ड या स्मूथ ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है फोटॉन्स, तो हमको वो पूरा का पूरा फोटोन बाउंस बैक होता है। इसके लिए मिरर में तुम खुद को पूरे के पूरे दिखते हो, क्योंकि सारा वो पूरा फोटॉन्स रिफ्लेक्ट बैक होके हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। बट if all the photons bounce back, we see something just like the surface. But if the thing is soft or not smooth like a blanket, fewer of the photons bounce back, and they bounce back at different angles. लेकिन अगर तुमने कोई बेडशीट देखा या कोई स्पॉन्ज देखा या कोई टेडी बियर देखा, तो ऐसे सब चीज़ों के क्या है, पूरे जो तुम्हारा जो फोटॉन्स है, तुम्हारे आई से जो पास आउट होता है, वो फोटॉन सारा रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, कुछ कुछ ही रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। और जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं वो सारा एक ही डायरेक्शन में नहीं, कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं एकदम सेंटर ऑफ द आई में जाएगा। सो इट विल डिफ़र। तो अगर हार्ड और स्मूथ सरफेस हो तो सारे के सारे फोटॉन्स बाउंस बैक होते हैं और हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और अगर रफ मतलब एकदम उबड़ खबड़ चीज़ हो, ठीक है, एकदम सॉफ्ट हो, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं हो, तो हमको सारा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ स्पेसिफाइड मतलब फोटॉन्स ही बाउंस बैक होंगे, तो हमको सिर्फ वो एंगल की चीज़ें ही दिखेंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर एक फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो व्हेन द सरफेस इज दैट इज हैपहैज़ार्ड, मतलब एकदम ऊपर नीचे ऐसा हो तो, ठीक है। Understood? So everything you see is really just bouncing photons show you the shape of the things they hit. तुम कुछ भी ऑब्जेक्ट देखते हो, तुमको वो दिखता क्यों है? क्योंकि उसका फोटॉन्स तुम्हारे आइज में रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। क्लियर? These two diagrams which is given on page number 11, स्मूथ सरफेस पे और रफ पे क्या होता है, वो दोनों आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। ओके, या Okay, activity 5 is omitted. Let's move to activity 6. Now, here an image is given. पहले देखेंगे तो हमें लगेगा कि पेपर वेट रखा है या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, पेबल जैसा, है ना? हाँ, बट व्हाट इज दैट इमेज? इट्स एन इमेज ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर. ओके, सो ऑन पेज नंबर 13, activity 6, there is an image given. Yeah, it's a drop of water. Now what the question they are asking is, work with a group or a partner to use the information in how does it do that, to explain why the cloth under the drop looks bigger than the cloth next to the drop. अब तुमने ध्यान से अगर ये इमेज को ऑब्जर्व किया तो तुमने देखा होगा कि वो ड्रॉप जहाँ पे पड़ा है उतना जगह का जो क्लोथ है वो हमको ज़्यादा मैग्नीफाइड लग रहा है और बाकी साइड का एकदम छोटा छोटा लग रहा है. सो व्हाई डज इट हैपन? ये आपको ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है with your friends or with your classmate, and then you have to find a solution. So if we were in the regular modem of learning, we would have done that very enthusiastically, yes, but now I'll explain you why does it happen. So it happens because the drop of water on the cloth should have magnified the area that it has covered. अभी ये जो ड्रॉप होता है ना पानी का, उसका कर्वेचर तुम देखना ऊपर का, वो एकदम कर्व्ड होता है ना? हाँ, तो वो कर्व्ड होता है ना, इसके लिए वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह होता है. मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा ना, एक साइड से थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो वैसा ही होता है ड्रॉप भी. तो जितना छोटा ड्रॉप होगा ना, उतना हमको ज़्यादा बड़ा दिखेगा उसके नीचे का ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा ड्रॉप होगा ना उतना छोटा दिखेगा हमको उसके जो ऑब्जेक्ट पे रखा है. फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग वर्क किया है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, तो मेरे को जो ऑब्जेक्ट दिखेगा उसके अंदर वो थ्रेड का एकदम प्रॉपरली मेरे को लाइनिंग्स दिख सकता है. लेकिन अगर मैंने बड़ा सा ड्रॉप डाला तो कर्वेचर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है. तब वो जब वो बड़ा होता है तो मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसके लिए वो छोटा छोटा दिखाता है. और जब छोटा ड्रॉप होता है तो कम एरिया कवर करता है, तो हमको बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिख जाता है. मतलब वही ऑब्जेक्ट हमको और मैग्नीफाइड रूप में दिखाई देता है. अंडरस्टूड? तो वो जो शेप का वो बेंड है ना, उसके हिसाब से वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है और हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है. ओके, अंडरस्टूड? So how it works? If the drop is smaller, we can see much magnified object on the surface, and if the drop is bigger, we can see smaller
means we can see them in small size, not in the magnified way. Okay, understood? Yeah. Activity 7 on page number 14. Usually, umbrellas keep people dry, but a little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. People who work outside in the sun, like the little girl's idea and buy her raining umbrella. So हम जनरली अम्ब्रेलाज क्यों यूज़ करते हैं? बारिश में जाते तब, ताकि पानी हम पर ना गिरे, और कभी कभी लोग गर्मी में भी कैरी करते ताकि बहुत धूप ना हो। पर जापान में एक लड़की थी, उसने ऐसे एक अम्ब्रेला इन्वेंट किया, जैसे ही आप खोलोगे ना, आप पे पानी स्प्रिंकल होगा ताकि आप गर्मी से राहत पाओ। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने वो अम्ब्रेला इन्वेंट किया था और काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते थे। तो जो लोग सन में काम करते हैं, तो उनका अम्ब्रेला, मतलब ये लड़की का मकसद यही था कि वैसे लोगों को वो अम्ब्रेला देना ताकि उनको मतलब वार्मनेस से थोड़ा रिलीव हो जाए और उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग। आप देर आर मैनी टेम्पल्स एंड ऑल इन वेरियस प्लेसेस, ड्यू टू हॉट वेदर व्हाट दे डू इज दे फिट पाइप्स इन द सीलिंग। ओके, पाइप्स फिट करते हैं और फैंस लगाते हैं। अगर वो एसी मतलब एसी होती दे शुड ऑलवेज कीप इट क्लोज ना, तो उन लोग क्या करते हैं, ओपन रखने के लिए दे कीप फैंस एंड उन लोग पाइप्स लगाते हैं, पीवीसी पाइप्स या फिर वो जो लोखंड वाला आता है वो, एंड दे पुट अप स्मॉल स्मॉल टाइनी होल्स इन इट। ओके, एंड जैसे पानी जाता है एकदम छोटे छोटे ड्रॉप्स में, और जैसे फैन का वो एयर सर्कुलेट होता है ना, तो ये पानी के ड्रॉप्स भी स्प्रिंकल होते हैं। सो वी विल फील लिटिल बिट मीन्स कूलर इन दैट हॉट वेदर। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई डिड शी डू दैट? The problem was that because of extreme heat, people face problems like heat stroke, sunstroke होता है, then heat exhaustion होता है, या फिर कुछ भी ऐसा heat illness होने लगता है। So ऐसे सब होने से उनको बचाने के लिए she invented this kind of umbrella so that could prevent them from excessive heat. Okay, understood everyone? Yeah, activity 8 is also omitted. Now we are moving to activity 9. Activity 9. Write a story about a child who invents something. Share your story with your class. How many inventions did your class invent? So what you will do is, आप लोगों को पहले तो नेट पे सर्च करना है, या इफ़ यू हैव एनी बुक्स यू कैन सर्च अपॉन इट, कि अबाउट सम इन्वेंशन डन बाय द चिल्ड्रन ऑफ योर एज। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल एज के बच्चों ने या कोई भी ऐसा बच्चों ने लेकिन इन्वेंट किया हुआ कुछ चीज़ आपको सर्व करना है और उसके बारे में एक स्टोरी लिखना है। ये जो स्पेस दिया है उसमें, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, सो यू आइडेंटिफाई सम वन स्टोरी रिगार्डिंग दैट एंड यू कैन राइट इट ओवर हियर। ओके, या। Activity 10. In this activity, there is a table given here. Read the following quotations. Quotations means quotes. Okay, let us read. Only 3 are given, so let us go through them. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Innovation मतलब new way of presenting the same thing. आप नॉर्मल से रोटी सब्जी बना खाते हो, ठीक है, उसको बनाकर और कोई ट्विस्ट की तरह अगर आप प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। एवरीवन लाइक्स इनोवेशन। आप लोगों को रोज़ अगर सेम खाना देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। सो लाइकवाइज हमें भी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू नॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी है। वी शुड एक्सप्लोर मोर। येस, सो दिस इज़ अ फेमस कोट बाय स्टीव जॉब्स wherein he says innovation distinguishes between a leader and a follower. Leader is the one who invents something, who innovates something, and the follower is the one who follows the same. तो इनोवेशन एक चीज़ है जो लीडर और फॉलोवर को अलग अलग करता है, कि कौन है हेड और कौन उसको फॉलो करता है।
Okay. Second is, I cannot understand why people are frightened of new ideas. I am afraid of the old ones by John Cage. John Cage says that मुझे ये समझ में नहीं आता लोगों को पुराने आइडियाज से मतलब प्यार क्यों होता है और नए से वो डरते क्यों है. मुझे तो पुरानों से ही मतलब डर लगता है. मेरे को न्यू आइडियाज पसंद है. मतलब चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ. एज सून एज यू एक्सेप्ट इट you will enjoy the life more. You will get to know more and more about things. Okay, you all like to write in this your handwriting, but you also love to innovate it, right? आप every year आप notice करना आपके notebooks last year के और इस year के compare करके देखना आपके handwritings vary करते हैं. यहाँ तक कि semester wise भी vary करता है. क्यों? क्योंकि हमें भी changes पसंद हैं. So this is a famous quote by John Cage. Third is, get a good idea and stay with it until it's done and done right by Walt Disney. So Walt Disney says, एक अच्छा आइडिया हमेशा ढूंढो और वो आइडिया के साथ ही रहो जब तक वो सही नहीं हो जाता. मतलब अगर आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में कुछ इन्वेंट करना है तो आप उसको प्रूव करो कि आपका इन्वेंशन करेक्ट है. इफ़ यू वांट टू इन्वेंट समथिंग न्यू, ट्राई टू मेक इट, मतलब इट शुड बी लाइक कि उसके लूप होल्स कम दिखे और बेस्ट दिखे. तो हमेशा अपना आइडियाज़ में मतलब न्यू चेंजेस लाना चाहिए. मेन इनोवेशन लो, इन्वेंशन लो या discovery लो. What is the first and the core term is change. Everyone likes to change, राइट. हम अगर रोज़ यही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं. हम सबको चेंज चाहिए, राइट. तो वो चेंज पे है ये सारे कोट्स. ओके. यहाँ पे जो बॉक्स प्रोवाइड किया है आपको उसमें क्या करना है, ये 3 कोट में से कोई भी एक आपको जो पसंद है वो कोट सिलेक्ट करो और उसको समझाओ कि राइटर बोलना क्या चाहते हैं. दिस ऑल्सो विल बी योर होमवर्क. आपको खुद बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों क्या समझाना चाहते हैं. पहले खुद का लिखो, फिर अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना कि तुमको क्या लगता है, क्या बताना चाहता है वो इसमें, इस तरीके से. Okay, I'll send the hard words meanings, okay, along with this, and you have to write that also in your notebook, and additional some exercises also will be given by me, so make sure that you complete it. Okay, I hope you have understood the chapter, and if you have not understood, listen to the whole video once again, and if you have any queries you can ask during the meet session as well as in the evening. Okay, bye bye, have a nice day.